Yes, all of you have joined. Yes, very good. चलो, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे. तो यहां से देखो, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया. ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड, आई होप सो. यस, वेरी गुड. सो यहाँ पे देखो, आपका रिजल्टेंट एफ स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा. तो यहां से आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया. एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, यू विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2. सो यहां से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री. ठीक है, सबको समझ आया हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस एंगल? चलो, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं छोटे छोटे. सपोज करो, अगर मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना 180 डिग्री हो जाता. सर मेरा नहीं आया. पल्लवी, क्या प्रॉब्लम है बताओ. यस, सिंपल था. देखो, क्वेश्चन में क्या था, हमने 3 वेक्टर्स लिए. माइनस नहीं आया, माइनस आएगा ना. देखो ध्यान से देखो, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो ये एफ स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना. सो ये माइनस एफ स्क्वायर होगा ना. समझ आया? हाँ, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया. फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा. कंसिडर वन मोर एग्जांपल. लेट्स से this is my a vector and this is my b vector, and the angle between both the vectors is 180 degree. Then what is the resultant vector? तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा? r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. So theta is here 180 degree. I will substitute here 180 degree. So cos 180 is -1. cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1. So you will get r square is equal to a square plus b square minus 2ab. So this is a formula of a minus b whole square. This is the formula of a minus b का whole square. So यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a माइनस b प्लस और माइनस a माइनस b. समझ आया? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स a एंड b, है ना. अब सपोज करो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता. सपोज करो इफ टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर a and this is vector b, and angle between both the vectors is 0 degree, means your theta is becoming 0. Theta is becoming 0 degree. Then what will be your resultant vector? So तब आपका resultant क्या होता? What will be your resultant? So resultant निकालने के लिए हम again क्या करते? Apply the resultant formula. R square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta.
plus 2ab cos theta. This is the formula to calculate the resultant of both the vectors a and b. Plus 2ab cos theta. So now theta is 0 degree. So put here 0. You will get a square plus b square plus 2ab, and we know that cos 0 is 1. Cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1. So you will get here 1. So ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ? This is the formula for a plus b का whole square. A plus b का whole square, which is equal to r square. From here you will get the value of r is equal to plus or minus a plus b, plus or minus a plus b. समझ आया? अब सपोज करो आपका a इक्वल टू b हो जाता. Let's say in a question it is given that if a is equal to b, then when theta is equal to 180 degree, your resultant will be, जब थीटा 180 था तो आपका रिजल्टेंट कितना हो जाता? प्लस माइनस 0. a माइनस b आ रहा था ना. So you will get your resultant as 0. If theta is equal to 0 degree, then you will get resultant is equal to, put theta is equal to 0. So यहाँ पे a और b की वैल्यू अगर सेम है, you will get plus minus 2a. b की जगह पे a पुट करो, you will get resultant as plus minus 2 times a. ठीक है. सपोज करो आपका थीटा 90 डिग्री होता. Suppose if theta is equal to 90 degree, then what will be your resultant? So again you will apply the formula r square equal to a square plus b square plus 2ab cos of 90 degree, and you know that cos 90 is 0. cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0. So ये टर्म आपका कैंसिल हो जाता. So you will left only with a square plus b square. This will be your r square. So यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाती? r is equal to under root of a square plus b square, and if a is equal to b, if a is equal to b, you will get resultant is equal to under root 2 times a. ठीक है. If a is equal to b, then your resultant will becomes root 2 times a. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो कई भी क्वेश्चंस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कोई भी एंगल दे सकते हैं, पर आपको बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए रिजल्टेंट की, और आपको ये बेसिक डेरिवेशन पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ का. ठीक है. दिस बेसिक डेरिवेशन यू मस्ट नो, एंड द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं. अब इसमें कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. सपोज करो हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं. लेट सपोज हमें दो वेक्टर्स ट्राइंगल के फॉर्म में दिए. यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ, ये बेसिक चीज सबको पता चल गई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की. ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड. किसी को कोई डाउट है तो बताओ. Anyone is having any doubts? Then yes, let me know. All of you are clear up to this point? Yes, very good. Kushi is saying yes, Nelly is saying yes, Neha is saying yes, Maitri Shah is saying yes. Okay. Pooja Patel.
चलो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, सो कुछ हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इस पे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए. सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर which is forming a triangle. So this will be your resultant vector which is connecting the initial and final point. This will be your resultant vector which is R vector, which is at an angle of 90 degree. Suppose two resultants of two vectors A and B is perpendicular to A vector, then magnitude of resultant is equal to, then you have to find the magnitude of resultant. What will be the magnitude of resultant? Also you have to find the angle, this angle theta. Also you have to find this angle theta. It is given that the magnitude of resultant, sorry, there is a slight change in the question. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी के हाफ के बराबर. सो यू हैव टू फाइंड द थीटा. यू हैव टू फाइंड द थीटा. ठीक है, हाँ, तो थीटा फाइंड करके बताओ कितना आएगा. इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, then you have to find the angle theta. So theta angle यहां से कितना हो जाएगा? You will apply sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, which is equal to R upon B, and it is given that R का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है which is half of B upon B. So B से B cancel हो जाएगा, so you will get half. So what will be your theta? Your theta will be 30 degree. Sin 30 is half, है ना. Your theta will be 30 degree. Your theta will be 30 degree. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, थीटा तो आपने निकाल दिया. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर and B vector. What is the angle between A vector and B vector? Then what will you answer? A और B के बीच का एंगल कितना होगा, क्या कोई बता सकता है? What is the angle between A vector and B vector? डायग्राम देखो. Find the angle between A vector and B vector. Yes, सब लोग गलती कर रहे हैं. मैंने आपको उसी दिन बताया था कि किसी भी दो वेक्टर्स के एंगल्स के बीच में जब आपको एंगल निकालना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर दे आर कनेक्टेड फ्रॉम हेड टू हेड और दे आर कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल. आप ऐसे ही एंगल नहीं बता सकते दो वेक्टर्स के बीच में. उसी दिन मैंने आपको बताया था, इसको बात को भूलना नहीं है, मैं घुमा फिरा के आपको पूछूंगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग that angle between the two vectors, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है. सो यहाँ पे आप देखो A वेक्टर एंड B वेक्टर, these are connected from head to tail. Head of one vector is connected with the tail of another vector, so I can't write the angle between the vectors. Very good. So मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को स्लाइड करवा लूंगा. I will slide this vector, so this vector will come here. Now this vector is also A vector. Now forgot this one and
now we can say that these two vectors A and B are connected from tail to tail. If two vectors are connected from tail to tail, then this will be the angle between the vectors. So angle between the vectors is equal to 150 degree. This is the angle between the vectors. ठीक है, आपका थीटा आपने 30 डिग्री निकाला, that is good, but theta is not the angle between the vectors. Angle between the vectors is when they are connected from tail to tail or they are connected from head to head, then only we can find the angle between the vectors. ठीक है, so this is the main point, key point you have to keep in the mind. Very good. 150 degree is the correct answer. सबको समझ आया? All of you are getting this? Yes. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. Let us try to do one more problem so that you will get clear with this topic 100%. कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. You will clear with this topic 100% after this example. The question is that if the sum of two units vectors, if the sum of two unit vectors is also a unit vector, then find the magnitude of their difference. Find the magnitude of their difference. This is the question. So इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे. ठीक है, सो हमें दिया हुआ है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स. अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? सपोज मैंने एक वेक्टर लिया A और दूसरा वेक्टर लिया B. अगर ये दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. If both the vectors are unit vectors, then their magnitude is always 1. We know that unit vectors का magnitude कितना होता है? 1. So अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अब इसने बोला रिजल्टेंट भी इसका यूनिट वेक्टर है. सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर. मतलब इनका जो रिजल्टेंट आया उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1. उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखोगे इसको. सो यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. As we know that the resultant is 1, so I will substitute here 1. 1 square is equal to 1 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 into cos theta. So यहाँ से आप देखो 1 square से 1 square cancel हो गया, and again you will get cos theta is equal to minus 1 by 2. You will get cos theta is equal to minus 1 by 2. Now the question is that you have to find the magnitude of their difference, है ना. ये तो मैग्नीट्यूड तब होता है जब हम दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, है ना. ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमें कब मिलता है? जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तब हमें ये रिजल्टेंट मिलता है R. If we add the two vectors, then we get this resultant vector R. ठीक है, तब हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है.
अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या फाइंड करने को बोला है? यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, है ना? सो हमें a माइनस बी का वैल्यू निकालना है. सो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ना? तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सबसे पहले इसको समझोगे, a वेक्टर अगर मेरा ऐसा था और b वेक्टर अगर मेरा इधर था, तब मुझे रिजल्टेंट इधर मिलता था. लेकिन अभी उसने बोला a माइनस बी, सो माइनस बी मेरा कहां पे होगा? सी. जब भी मैं किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, सो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस. सो दिस विल बी योर माइनस बी वेक्टर, and the resultant of a vector and minus b vector will be in this direction. पहले आपका रिजल्टेंट इधर था, अब आपका रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हो गया, which is r dash. ठीक है? सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस r डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. This will be the magnitude of this vector. Because of minus b vector, the direction of the vector will reverse and hence the magnitude will change. So magnitude कितना हो जाएगा अब इस वेक्टर का? अब यहाँ पे वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, you will get 1 square plus 1 square minus 2 into 1 into 1. What is the value of cos theta? Cos theta का वैल्यू हमने ऊपर निकाला, which is minus 1 by 2. Now substitute the value minus 1 by 2 here. Then you will get, this will be your resultant square. So your resultant square will be 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3. So your final resultant, which is say, is equal to root 3 units. ठीक है? सो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं. मैंने आपके साथ आज जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए, ये सारे गुड एग्जांपल्स में आते हैं. तो अगर आपको ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे थ्योरी के साथ, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी. यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है? जितने भी पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स, वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए. इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस. आज का आपका जो होमवर्क रहेगा, which will be purely based on this triangle law and parallelogram law. ठीक है? All of you clear up to this? Got it? हाँ, पलवी सिंह सर वहां पे एडिशन है तो हम कट कैसे कर रहे हैं? एडिशन है ना बेटा, 1 प्लस 1 2, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 करोगे तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यू विल गेट 3. नाउ गॉट इट? इसके पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? कौन से पार्ट में? यहाँ पे 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना. इसमें क्या दिक्कत है? इसके पहले वाले पार्ट में अभी क्लियर है कि नहीं? सबको समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है तो बताओ. यस.
कौन से वाले पार्ट में डाउट है? आई एम नॉट गेटिंग यू. विच पार्ट यू आर सेइंग अबाउट? इसके पहले वाला कौन सा पार्ट है? चलो, वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर ओनली. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Get you in the next class. No doubt. Okay, bye bye to all of you. Bye bye and lots of bye bye. Chalo. Got it. Very good. Chalo, got it. So very good. Bye bye to all of you.